हे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, एनाटॉमी ऑफ आई. Whenever anatomy of eye is asked, you have to write a detailed note on its layer of eye and interior and outer structure of eye. So let's start with layers of eye. Eye has three layers: fibrous tunic, vascular tunic, retina. Fibrous tunic is the outermost layer, vascular tunic is the middle layer, and retina is the innermost layer, as you know. फाइब्रस ट्यूनिक और द आउटरमोस्ट लेयर का जो फंक्शन होता है वो होता है टू प्रोटेक्ट और हैज़ अ प्रोटेक्टिव फंक्शन. वेस्कुलर ट्यूनिक और मिडल लेयर, इसका फंक्शन होता है न्यूट्रिटिव, मीन्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द इनर सेल और द आई बॉल. रेटिना और द इनर लेयर हैज़ अ फंक्शन टू प्रोवाइड पिगमेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिगमेंट्री लेयर. इट इज रिटन एज सेंसरी पिगमेंटेड लेयर. So let's start with fibrous tunic. Fibrous tunic is subdivided into cornea and sclera. Fibrous tunic, as we already did, it is the outermost layer and divided into cornea and sclera. Like cornea is 1 out of 6 part and its focus light on retina, and sclera is 5 out of 6 and provides shape to eyeball. अभी हम इसे डायग्राम में भी देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इन दोनों की लोकेशन कहाँ पे होती है. Next, the middle layer, choroid, ciliary body, iris, pupil. रेटिना में अभी मैंने बताया था, इट इज अ पिगमेंट्री लेयर एंड इट प्रोवाइड्स पिगमेंट टू हाईली पिगमेंटेड लेयर एंड न्यूरल लेयर. इट इज सब डिवाइडेड. देन न्यूरल लेयर इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू फोटोरिसेप्टर लेयर, बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियन सेल लेयर. फोटोरिसेप्टर सेल्स में आपके रॉड एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं आपकी डिम एंड ब्राइट लाइट को. रॉड डिटेक्ट्स द डिम लाइट एंड कोन डिटेक्ट्स द ब्राइट लाइट. पहले हम लेयर देख लेते हैं एक बार आई के डायग्राम में. Like normal eye, this white portion is iris, this is cornea, and the small dot which is known as pupil. This is anatomy of eye. अभी हमने पढ़ी थी 3 लेयर, sclera the outermost और the 5th out of 6 part is sclera. फिर आती है choroid, inner one, then retina the innermost layer. Okay? और जो बीच में जो लिक्विड होता है इसको हम इस बॉडी को बोलते हैं विट्रस बॉडी. आगे ये आ गया हमारा प्यूपिल. दिस इज लेंस, आइरिस, सिलियरी बॉडी, एंटीरियर चैम्बर. दिस इज सस्पेंडेड लिगामेंट्स विच होल्ड द लेंस, एंड दिस इज विट्रस बॉडी फिल्ड विद विट्रस ह्यूमर. अभी हम इसी को पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई. अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द आई बॉल. आई बॉल का जो इंटीरियर होता है वो दो उसमें कैविटी में डिवाइड होता है, एंटीरियर कैविटी एंड विट्रस चैम्बर. Anterior cavity is filled with aqueous humor and vitreous chamber or vitreous body is filled with vitreous humor. इन दोनों कैविटीज या दोनों ह्यूमर का मेन फंक्शन यही है टू नरिश द आई बॉल. एंटीरियर कैविटी जो आगे होती है, एंटीरियर मीन्स फॉरवर्ड और आगे, इसके पास भी दो चीज़ होती है, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर. एंटीरियर चैम्बर होता है कॉर्निया और आइरिस के बीच में, और पोस्टीरियर चैम्बर होता है आइरिस और लेंस के बीच में. अभी डायग्राम में और अच्छे से देख लेंगे कहाँ पे होता है. लेट्स सी इन डायग्राम. सो here it is the outermost layer sclera and cornea, which is 1 out of 6 part is cornea, and this is sclera. Middle layer is choroid and the innermost layer is retina. This elevation or depression you can call it as macula lutea, central depression, or you can also known as central depression. This is optic nerve which interprets the function or which interprets the sensory informations. This is optic disc, and this point is known as blind spot. It is commonly called as blind spot. We have seen that the eye has two chambers or two bodies, anterior body or vitreous body. Vitreous body is this one, anterior body is this one. Anterior means आगे. Vitreous body is filled with vitreous humor. Anterior body के हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे, anterior chamber and posterior chamber. Anterior chamber होती है हमारी cornea और iris के बीच में. Posterior chamber होता है हमारा iris और lens के बीच में. These are suspendary ligaments which suspend the lens or make lens movable to adjust or to focus light. All it is pupil, iris, lens. So here is the theory of anatomy of eye. What we have already learned is the layers of eye: fibrous tunic, vascular tunic, retina. Then we learn about interior of the eyeball. Like interior of the eyeball means anterior cavity of vitreous chamber. Then we will learn about common diseases related to eye, like bulging of eye. It is also called as proptopsis.
in which eye sockets ड्यू टू स्पेस लैकिंग ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेव्स डिसीज मीन्स आई थोड़ी प्रोट्यूड हो जाती है, थोड़ी बाहर को निकल जाती हैं, तो हम इसे कहते हैं बल्जिंग ऑफ आई. कैटरेक्ट इट इज़ अ डीजनरेटिव फॉर्म ऑफ आई डिसऑर्डर कॉजेज ड्यू टू एजिंग रेडिएशन एक्सपोजर इन विच लेंस बिकम ओपेक. मीन्स जो लेंस होता है हमारा वो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ओपेक हो जाता है, और जो हमारा विजन होता है वो मिक्सड हो जाता है, मीन्स लाइक धुंधला धुंधला, यू कैन से ब्लर. कलर ब्लाइंडनेस इट इज़ अ डेफिशिएंसी इन द वे टू सी कलर्स. मीन्स जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं उन्हें हम देख नहीं पाते हैं. एंड इट्स अकर्स व्हेन लाइट सेंसिटिव सेल इन द रेटिना फेल्स टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू वेवलेंथ ऑफ कलर्स. मीन जो भी प्राइमरी कलर्स होते हैं उनकी हमें कलर्स वो दिखते नहीं है. एंड द कलर ब्लाइंडेडनेस पर्सन सीज ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर. They can't see any primary colors or any other secondary colors. So here all about of anatomy of eye. Thank you.